जॉइंट रिप्लेसमेंट का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। रियलिटी क्या है? स्पोर्ट्स मेडिसिन में कौन सा नया टेक्निक या एडवांसमेंट आज गेम चेंजर बन रहा है? So there is lots and lots of innovation in our field, especially in sports injury. Number one, the reason behind these innovations is that most athletes want to be on the field as soon as possible. यंग डॉक्टर्स और एथलेटिक्स जो ऑर्थोपेडिक या स्पोर्ट्स मेडिसिन को करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका बिगेस्ट लेसन या एडवाइस क्या होगा? So आजकल ट्रेंड ऐसा है कि आई गेट अ रिपोर्ट ऑन फोन कि सर ये MRI है और ये आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, क्या कॉस्ट करोगे. And my reply to all those WhatsApp messages is you need to consult me first. एथलीट्स और नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले पेशेंट्स के जॉइंट इंजरीज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, ये ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? So the main difference is जब मैं एथलीट्स को ट्रीट करता हूँ तो उनका they are very so much into focused on their rehabilitation. In your orthopedic career, which is that one case that has touched your heart and that you would like to share their case history? Dr. Neel Shah, one of Vadodara's leading and dynamic orthopedic surgeons and a true game changer in sports medicine and joint care. Coming from a legacy of excellence, his father, Dr. Anil Shah, is a nationally acclaimed expert in pelvis and acetabulum fractures. Dr. Neel Shah has built a remarkable career of his own over the past decade. With advanced training from SportsMed in Mumbai and the Cleveland Clinic in the USA, he is the forefront of complex arthroscopy, sports injury treatment, and joint replacements. From helping athletes recover stronger to pioneering in techniques in orthopedic surgery, Dr. Neel Shah is redefining how modern orthopedics is practiced in India. Welcome, Dr. Neel. Thank you so much, Dr. Chitra. Thank you so much, sir. And thank you so much for coming on Let's Talk Live, a small podcast where we two doctors come together and share the viewers, the common public, about how the doctors work in regular. Thank you so much, Dr. Chitra. And I'm very thankful for inviting me. Thank you so much, sir. Could you please share some glimpses to the viewers? What exactly is the work line of yours? So I am Dr. Neel Shah and I'm specialized in complex arthroscopic surgeries, for which, as you rightly said, I am trained from SportsMed in Mumbai, in USA, and different centers in Europe and around the world. So my niche is helping athletes from their injury to rehabilitation, surgery, and help them bounce back to their sports and their pre-injury level. This is a question that I really wanted to ask. What made your mind to become an orthopedic surgeon? So one definitely big reason is my father, who is an orthopedic surgeon, and I saw him कि वो कैसे पूरे दिन बिजी थे, पूरे दिन काम करते थे, बट एंड ऑफ द डे उनको जो पेशेंट्स जो मुझे मिलते थे उनके, और वो जो उनके दे यूज्ड टू ट्रीट हिम लाइक अ गॉड कि भाई आपकी वजह से हम चल रहे हैं, आपकी वजह से हम जिंदा है. तो दैट इज द रीजन आई थॉट कि डेफिनेटली एक कम्युनिटी सर्विस हो रही है ये इस फील्ड में, एंड दैट इज द रीजन दैट आई थॉट दैट आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट, आई विल ऑल्सो बी एन ऑर्थोपेडिक सर्जन लाइक हिम. गोइंग फॉरवर्ड, सो आपने बचपन से अपने फादर को एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन देखा है, सो इन एंड आउट आप भी वहाँ पे अपने हॉस्पिटल पर खेलने गए होंगे. सो डिड यू सी इन एक्शन योर फादर वर्किंग? एंड आई विल टेल यू वेरी गुड स्टोरी कि उनके टाइम पे जब जो सर्जरीज होती थी, जो हिप फ्रैक्चर्स है, तो उनके टाइम पे हर बार उनको एक एक्सरे शूट करके चेक करके वो सर्जरीज में आगे बढ़ते थे. तो वो जो सर्जरीज उस टाइम पे 4-4, 5-5 घंटे चलती थी. आज हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स है कि वो अंडर ऑपरेशन थिएटर में ही IITV है, वो लाइव एक्सरे 1 सेकंड में निकल जाता है, जो उनके टाइम पे 10-15 मिनट में एक एक्सरे का व्यू आता था. तो अभी वो बहुत आराम हो गया है हमें सर्जरीज में. सो आपने अपने फादर से ओल्ड एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन देखा है एंड सीखा है. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम डॉक्टर अनिल शाह इज अ पायनियर, एंड दैट्स व्हाई यू आर कैरिंग फॉरवर्ड हिज लेगेसी आल्सो. सो स्टेटिंग फॉरवर्ड सर, आपने दोनों टेक्नोलॉजी देखी है. सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी आशीर्वाद हॉस्पिटल में विच इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट प्रूव्स दैट ओके वी आर इन 2025 एंड गोइंग फॉरवर्ड इन 2026? सो अगर मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की बात करूं तो उस टाइम पे ऐसा था कि जो हम एक्सरेज लेते थे उसके ऊपर हम पेपर से प्लानिंग करते थे, ड्रॉ करते थे, साइज करते थे, मेजर करते थे. आज एवरीथिंग हैज चेंज्ड. तो अभी मैं तो एक CT स्कैन के लिए पेशेंट को भेजता हूँ, उसके रिपोर्ट्स मेरे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, पूरा 360 डिग्री एक इम्प्लांट हम पोजीशन कर देते हैं, कौन सी कंपनी का इम्प्लांट बेटर है, कौन सी साइज चाहिए, कितना अलाइनमेंट चाहिए, पेशेंट स्पेसिफिक कितना करेक्शन चाहिए. तो वी प्लान एवरीथिंग प्री ऑपरेटिवली. इट इज वेरी इजी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी.
That's really nice. So you can say that technology has made your life much easier as an orthopedic surgeon. Yes. Lovely, sir. Going forward, I'll be asking few questions that I have of my own. I have few questions from the viewers, and said that मुझे थोड़ा लोगों के लिए रीडिफाइन करना है कि वाई उनको क्यों ऑर्थोपेडिक सर्जन को कब और कैसे देखना चाहिए. सो कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी होंगे एंड कुछ जो जॉनरे मतलब जनरल पब्लिक आजकल की जनरेशन्स को देखना और समझना उनके लिए समझना इजी हो जाए. So going forward, we are ready and we'll break all the myths that people have. Lovely, sir. So my first question I would shoot at you, sir, is आज के टाइम में नी पेन, बैक पेन और जॉइंट पेन सिर्फ एज रिलेटेड नहीं है. यंग लोगों में ये इतना फास्ट क्यों बढ़ रहा है? See, number one reason which I feel is the lifestyle that people have, especially the young generation. Okay. People are getting more and more sedentary. पूरे दिन वो घर पे फोन में देखते रहते हैं, उसकी वजह से उनकी बाहर की एक्टिविटी है दैट इज वेरी लेस. नंबर टू इज देयर ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम जंक फूड्स, diet, drinks and everything that is hampering their life. Okay. And we are seeing more and more patients who are very obese these days. So that is the reason why young age में भी patient को बैक पेन, नी पेन और बहुत सारी डिसीजेज आजकल प्रिवेलेंट हो गई है, which was not there in earlier times. In earlier times, I remember, sir, आपने मुझे एक बार कहानी बताई थी कि आपकी मम्मी कैसे आपको बाहर भेजा करती थी, मतलब बुलाया करती थी, और आज की मम्मियाँ बाहर बच्चों को पुश करती है ज्यादा एक्टिव रहने के लिए and all those things. So do you pitch the same thing to your patients every time, the same thing? So yes, we are very much, my first treatment in my prescription is always lifestyle modification or something related to it, like physiotherapy, some exercise, some form of activity which will increase your endurance, your stamina and improve your physical health. And देखा जाए तो I think so, of course, your father is a pioneer in known name as the person who has built from scratch Ashirwad Hospital, and carrying forward, you are carrying his legacy. आप आगे भी लेके जा रहे हो, and I am the core team member of your hospital also, sir. एंड मैंने ये भी देखा है कि आपकी हॉस्पिटल शायद एक बहुत बड़े ग्राउंड के ऑपोजिट ही है. एंड इवनिंग में आपको देखती हूँ फुटबॉल खेलते हुए आपके बच्चे लोग के साथ. यस सो वी एट आशीर्वाद हॉस्पिटल ऑपोजिट पोलो ग्राउंड, बहुत फेमस ग्राउंड है. और पूरे ग्राउंड आजकल बहुत कम ग्राउंड्स बचे हैं बड़ौदा में जहाँ पे हम आरा दूर से देखते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, वेदर इट इज क्रिकेट, वेदर इट इज फुटबॉल और एनी अदर स्पोर्ट्स. तो वो स्पोर्ट्स ग्राउंड ही बहुत कम हो गए, दैट इज नंबर वन. बट इट इज ऑलवेज अ प्लेजर and we are very pleased that we are associated with many such grounds and cricket academies and other sports academies where we help children, and whoever has sustained such injury who cannot play, we help them in returning to their sports. Lovely, sir. Moving forward, my next question is, स्पोर्ट्स इंजरी के बाद लोग अक्सर गलती क्या करते हैं? रेस्ट ज्यादा करते हैं या ट्रीटमेंट डिले करते हैं? दोनों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? सो मैं दोनों का आज ही मैंने जो 2 पेशेंट्स ट्रीट किए उसी के एग्जांपल से आपको मैं उसका आंसर दूंगा. सो नंबर 1 पेशेंट जो आज मैंने एक सर्जरी किया था, विच वाज एन लिगामेंट सर्जरी ऑफ द नी. दैट पेशेंट हैड सस्टेन इंजरी ड्यूरिंग फुटबॉल इन कैनेडा, दैट वाज आल्सो 2 years back. Okay. एंड पेशेंट डिलेड द ट्रीटमेंट. बिकॉज ऑफ दैट डिले उनके उस टाइम पे जो MRI था उसमें सिर्फ लिगामेंट टेयर था. अभी मैंने ऑपरेट किया तो दोनों उनके मेनिस्कस या जो गद्दी बोलते हैं दोनों टेयर हो गए थे. Okay. तो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स सर्जरी. रिहेबिलिटेशन अभी उनका स्लो हो गया है. रिटर्न टू स्पोर्ट्स विल टेक टाइम. तो नंबर 1 इज यू शुड नॉट डिले एनी इंजरी एंड यू शुड कंसल्ट एन एक्सपर्ट स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट फॉर सच इंजरीज. नंबर 2 इज जो आपने पूछा कि रेस्ट कितना करना है, तो अगेन एक पेशेंट था जिसको लिगामेंट इंजरीज हुआ था, एंड इन माय प्रोटोकॉल हम मोबिलाइजेशन तो शुरू कर ही देते हैं. यानी पेशेंट्स को स्टिफ नहीं करना है. पेशेंट को सिर्फ नी ब्रेस पहना के उनको सिर्फ आराम करने का बोलोगे तो वो नी स्टिफ हो जाएगा. उसकी वजह से उनकी रिहेबिलिटेशन ही नहीं होगी. वो 6 महीने साल तक मेरे पास आते ही रहेंगे कि उनकी मूवमेंट नहीं है. तो इसलिए ये पेशेंट्स में हम मोबिलाइजेशन और मसल का थोड़ा थोड़ा स्टैटिक एक्सरसाइज इनिश डे 1 से शुरू कर देते हैं ताकि इनकी रिटर्न टू स्पोर्ट्स बेटर हो जाए. सो इट इज लाइक we cannot say that ignorance is bliss. Yes. Lovely. Moving forward, sir. एथलीट्स और नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले पेशेंट्स के जॉइंट इंजरीज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, ये ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? So the main difference is जब मैं एथलीट्स को ट्रीट करता हूँ तो उनका they are very so much into focused on their rehabilitation.
तो फिजियोथेरेपी एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर ट्रेनिंग लेते हैं, रेगुलरली उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं ताकि उनकी मोबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथनिंग इतनी फास्ट वो रिगेन कर दे. सो दे यूजुअली रिटर्न टू देयर प्री इंजरी लेवल वेरी फास्ट इन जस्ट फ्यू मंथ्स. समवन हु इज हैविंग अ वेरी मोनोटोनस लाइफस्टाइल और उनको जब ऐसी इंजरीज होती है तो नंबर वन इज देयर मसल्स आर ऑलरेडी वीक, so they are not doing any exercises or physiotherapy or muscle strengthening before that injury. तो उनका ऑलरेडी उसमें जो वीकनेस होता है तो उनको रीगेन करने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी का जो फेज है दैट इज वेरी लॉन्गर इन नॉन प्रोफेशनल्स कंपेयर टू द प्रोफेशनल्स. लवली. सो हमें अगर अब कोई स्पोर्ट्समैन हमें पसंद है तो हमें उसे डाई हार्ड फॉलो करना चाहिए, उसके रिहैब को भी अपनाना चाहिए, राइट? Yes, and you can see that more and more sports people are putting on and off their occasional lifestyle, how strict they are in their diet, in their exercises. तो वो भी हमें अपनाना चाहिए, ना ही सिर्फ उनको देखना है. लवली लवली. मूविंग एंड गोइंग फॉरवर्ड सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं. रियलिटी क्या है? कब सर्जरी अवॉइड हो सकती है और कब डिले करना नुकसान पहुंचाता है? देखो, डरने की तो बात ही नहीं है क्योंकि कोई भी सर्जरी पेशेंट की कंसर्न के बिना होती नहीं है. तो नंबर वन इज डरने की कोई बात नहीं है. आप एक बार कंसल्ट करो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ, उनसे मिलो. वंस यू आर कंफर्टेबल देन यू शुड गो. अभी आपका जो क्वेश्चन है कि डिले करना है कि नहीं, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट का मेन इंडिकेशन है कि कंप्लीट आर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट या ग्रेड 4 या सीवियर आर्थराइटिस ऑफ द पर्टिकुलर जॉइंट. मोस्ट कॉमन इज नी एंड द हिप. तो वो जब सिचुएशन आ जाती है और आपकी आर्थराइटिस आपकी लाइफस्टाइल हैम्पर कर रहा है कि आप अपने बेड से ना ड्राइंग रूम में नहीं जा पा रहे हो, आप किचन में नहीं जा पा रहे हो, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप पूरे डोल रहे हो चलने में, एक्टिविटी में, डे टू डे एक्टिविटी आपकी हैम्पर हो रही है, नाइट पेन है, दवाई ले रहे हो रोज, तो दैट इज द टाइम कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए. अगर उसके इफ यू आर एबल टू लिव योर लाइफस्टाइल कंफर्टेबली देन यू कैन अवॉइड. सर बहुत बार मैंने भी ये महसूस किया और बहुत अपने मतलब दादी नानी से सुना भी है, वो टक टक आवाज आती है. सो आर दे और ऑल्सो शुड दे कंसर्न यू अबाउट दिस थिंग्स? मतलब उन यू नो लाइक फीमेल्स में ना जब तक है ना विग्रस पेन नहीं होता तब तक, मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स तो ठीक है सर उनका एंड्योरेंस लेवल कुछ ज्यादा ही होता है, लेकिन फीमेल्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ कंप्लेनिंग ऑल्सो. सो मेरी दादी नानी हमेशा कंप्लेन एंड आई यूज्ड टू हियर, वो ऐसा सा मूवमेंट करते थे तो उनका आवाज क्लिक क्लिक जैसा कुछ आवाज आता था. तो क्लिकिंग साउंड इज अ वेरी कॉमन थिंग. अगर पेनलेस क्लिक है then we can ignore that part, especially in young people. But if it is a painful click, then you should definitely consult an orthopedic surgeon. You can get investigated in the form of an X-ray, MRI, CT scan, and we should look for the reason for clicking. Most of the times by doing simple physiotherapy, तो clicking चला जाता है. But if it is causing you discomfort or pain, then you should consult and get the treatment accordingly. Okay, sir. Then coming to this, because I've been getting this click click आवाज from my husband also, who's just I think so very young, like we both are. And pickleball आजकल आपने सुना है कि it's a game which is like changing a trending game. Yes. तो उसमें भी मैंने बहुत सुना है कि लोगों को प्रेशर बहुत आता है अपने नीज पे. तो पिकलबॉल खेलने वाले मेजोरिटी आर इन देयर 40s. Yes. अभी आफ्टर 30s this is a very important point. We lose 1% of our muscle strength every year. Agreed. So by the time you are in 40s, you are already losing your muscle strength. आपके quadriceps muscles weak है, तो आपको नी में already abnormal load आ रहा है, जिसकी वजह से clicking is the most important reason. जो लोग पिकलबॉल खेल रहे हैं, मैं देखता हूँ कि ना ही वो वार्म अप करते हैं, ना ही वो मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ना ही वो प्री हैप करते हैं, ना ही कोई फिजियोथेरापिस्ट के कंसल्ट करते हैं. तो अगर आप थोड़ा स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग करोगे तो यू विल बी एबल टू प्ले द स्पोर्ट्स बेटर एंड आपको इंजरीज के चांसेस भी कम है और वो क्लिकिंग भी चला जाएगा. ओके, फेयर इनफ सर. सो ये ज्ञान मैं उनको जरूर दूंगी एंड कल मैं आपको उनको आशीर्वाद हॉस्पिटल जरूर भेजूंगी. मूविंग फॉरवर्ड सर, स्पोर्ट्स मेडिसिन में कौन सा नया टेक्निक या एडवांसमेंट आज गेम चेंजर बन रहा है? सो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ innovation in our field, especially in sports injury. Number one, the reason behind these innovations is that most athletes want to be on the field as soon as possible. No one is ready to wait. एक साल अभी जो पहले हम वेट कराते थे कि एक साल तक आप मत खेलो, पूरी सीजन मिस हो जाती है प्लेयर्स की, so they want a very quick rehabilitation process. तो वैसे में जो हमारे लिगामेंट्स और मेनिस्कस या मसल टेंडन्स की इंजरीज है, उसमें वी आर यूजिंग दिस लेटेस्ट इम्प्लांट्स. वी हैव बायोअब्जॉर्बेबल इम्प्लांट्स जो
2 या 3 साल में बॉडी में पिघल जाते हैं। वी हैव एडवांस्ड टेप्स एंड सूचर्स विच आर हाई टेंसाइल मटेरियल्स, जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, मेनिस्कस है, गद्दी है, उनको वो होल्ड करके लंबे टाइम तक रखते हैं ताकि हम रिहेबिलिटेशन और रिटर्न टू स्पोर्ट्स जल्दी शुरू कर ले, और वो बाय द टाइम वो हीलिंग हो जाए तब तक वो ये मटेरियल्स जो न्यू इम्प्लांट्स है वो दे होल्ड द पर्टिकुलर टिश्यू इन पोजीशन, ताकि प्लेयर्स की कोई री इंजरी के चांसेस ना हो। सो हम टेक्निकली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को हीलर्स भी बोल सकते हैं, राइट सर? यस। सो अब मैं डॉक्टर नील शाह को डॉक्टर नील शाह ऑर्थोपेडिक सर्जन प्लस हीलर भी बुलाया करूंगी। यस। मूविंग फॉरवर्ड सर, रिकवरी के दौरान पेशेंट्स मेंटली कौन से फेज से गुजरता है? फियर, फ्रस्ट्रेशन या ओवर कॉन्फिडेंस? डॉक्टर का रोल यहाँ क्या होता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फियर। तो जब भी हम सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि अंदर कुछ टूट जाएगा, स्क्रू निकल जाएगा, धागा टूट जाएगा, तो वो मूवमेंट ही नहीं करता है। तो फियर जो है ना, उसमें डॉक्टर का रोल सबसे ज्यादा है कंपेयर टू इवन फिजियोथेरापिस्ट, बिकॉज इफ द डॉक्टर्स, जब मैं बोलता हूँ कि पेशेंट की आप करो, मैं बाजू में खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा, तो वो करने लगेंगे। एनीवन एल्स, कोई भी अगर बोलेगा तो पेशेंट नहीं करेगा। तो मेरे पास पेशेंट है जो मैं बोलता हूँ 10-15 दिन बाद आते हैं तो वो कुछ नहीं करते, लेकिन जब मैं कराता हूँ तो करते हैं। तो मेरा रोल वो फियर जो उनके दिमाग में से हटाना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? फ्रस्ट्रेशन सर। फ्रस्ट्रेशन इसलिए होता है कि सबको जल्दी है आज के जमाने में, सबको क्विक ट्रीटमेंट चाहिए। अभी ऐसा तो नहीं है, हीलिंग है ना, तो हीलिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो समझना है। हीलिंग नेचुरल प्रोसेस है तो टाइम लेने ही वाला है। तो हीलिंग के टाइम पे पेशेंट्स को ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या ये कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ, इट इज जस्ट अ टाइम। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, पेशेंस रखना है, आपके डॉक्टर को कंसल्ट करो, उनके गाइडेंस में एक्टिविटी करो, एंड यू आर गोइंग टू बी फाइन। एंड व्हाट अबाउट दैट ओवर कॉन्फिडेंट पेशेंट? अरे वो तो पूछो ही मत। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका मैंने वो एसिटाबुलम और पेल्विस फिक्स किया है, उनको मैं बोलता हूँ कि आपको वजन नहीं रखना है, वॉकर से चलो, पैर लंगड़ी करके। मेरे ओपीडी में चल के आते हैं और बोलते हैं कि मैं वजन ही नहीं रखा हूँ। तो वो जो पेशेंट्स है वो मुझे टेंशन देते हैं, क्योंकि फिर अगर उनका वो कुछ स्क्रू लूज हो गया या फ्रैक्चर जुड़ा नहीं तो फिर बोलेंगे कि सर्जरी ठीक से नहीं हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंट पेशेंट्स भी बहुत है हमारे देश में, बट सबको हमें एक्सट्रीम्स ऑफ पेशेंट से डील करते हैं, बट दैट इज हाउ आवर प्रैक्टिस इज, एंड वी हेल्प आवर पेशेंट्स कि उनको राइट टाइम पे राइट चीज करनी चाहिए, ना ही ज्यादा करना है ना ही कम करना है। यंग डॉक्टर्स और एथलेटिक्स जो ऑर्थोपेडिक या स्पोर्ट्स मेडिसिन को करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका बिगेस्ट लेसन या एडवाइस क्या होगा? So number one advice is that you should be aware thoroughly of the human anatomy, every muscles, every tendons. Number two is जब भी कोई भी इंजरी होता है तो every injury is different. मैं जब आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन करता हूँ तो every patient is different, उनकी इंजरी डिफरेंट है, उनकी डिमांड्स अलग है। सो द इम्पोर्टेंट एडवाइस इज दैट यू शुड एग्जामिन दैट पेशेंट, यू शुड नो कि उनका फंक्शन क्या है, वो कौन सी स्पोर्ट्स में है, उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो उन्हें चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। इट इज पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विच विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। लवली सर। मूविंग फॉरवर्ड, ये शायद मेरा भी क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सर्जरी के बाद रिकवरी स्पोर्ट्स में इसका कितना क्रिटिकल रोल है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेजोरिटी पेशेंट्स मेरे जो आसपास के लोग हैं उनको ऐसा है कि सिर्फ घर पे हाथ या पैर हिलाने से फिजियोथेरेपी हो जाती है, और फिर वो 1-2 महीने के बाद आते हैं कि सर ये अच्छा नहीं हुआ है, ये मूवमेंट नहीं आया है, अभी भी स्वेलिंग है, अभी भी मसल वीक है। सो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इंजरी या प्रोफेशनल मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट के पास प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो करोगे तभी आपका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होगा और यू कैन रिटर्न टू योर प्री इंजरी लेवल। Lovely. So these questions are a little bit dicey, and I know it is a little bit tricky for you to answer, but I really need answers for this. Don't let me end in a soup, please. No, sir. But actually, this types of questions put me also in pickle. Okay. But being a professional, being an orthopedic surgeon, I really need you to shed some light for the viewers regarding joint replacement. What does robot actually do? So लोगों को ऐसा है कि पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में जाएगा और डॉक्टर बाहर बैठा चाय पी रहा है और कोई रोबोट के 4-5 वो आ गए और वो रोबोट ने सर्जरी कर दिया। तो बेसिकली वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
नंबर वन इज कि क्या अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है कि उसको ऑपरेशन से पहले की प्लानिंग वो कोई रोबोट नहीं करता है, वो खुद डॉक्टर ही करता है, एंड दैट पर्टिकुलर डॉक्टर्स एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी सच थिंग। नंबर टू, रोबोट्स आर देयर, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हो रहे हैं, तो उसका रोल है दैट इज़ वेरी मिनिमल। ऐसा नहीं है कि रोबोट कर दिया और सब दूसरे दिन से दौड़ने लगेगा। सो कन्वेंशनल सर्जरीज का भी इतना ही रोल है। न्यू टेक्निक्स आ रहे हैं, 3D AI प्लानिंग वाले रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ इनोवेशंस, बट जो लोगों को है कि रोबोट सब कर लेता है वैसा नहीं है। इट प्लेज अ वेरी माइनर रोल, एंड दैट पर्टिकुलर रोल की वजह से ही पेशेंट चलता है, ऐसा नहीं है। आज सालों से जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत एक सक्सेसफुल सर्जरी है, जस्ट दैट पीपल आर इम्प्लीकेटिंग कि उसकी वजह से हो रहा है, विच इज not 100% right. Right. Even I felt, sir, because I think so आशीर्वाद हॉस्पिटल पे भी हम नया एक इंस्ट्रूमेंट लाए हैं, which is a far advanced. So we are now doing हम ऑपरेशन से पहले CT स्कैन करके एक 3D AI बेस्ड प्लानिंग करते हैं, which is equally effective, and we are giving wonderful results with this technique. So if any of your viewers has any joint pain, they can consult at me. Then they can consult me at Ashwad Hospital, and we will give the best possible treatment. So I know you are a very good friend of mine, Dr. Neil, and I've known you from years now. Said that I really remember that tomboy who was an college frontier and who had an aspiration to become this orthopedic surgeon. How do I see my friend in an OT, so concentrated, so established? Could you put some more lights on that? ऑपरेशन थिएटर की तो बात ही अलग है। सो वंस द पेशेंट इज इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर, आवर फोकस इज completely on that particular surgery. So we study the X-ray completely. We see what the best can be done for this particular patient. We plan our incisions. We see that how we only think in our mind कि patient कब चलने वाला है बैक। तो वो दिमाग में रख के भी हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, then every focus is there and we always succeed in our surgeries. I recently saw that you bought a new AI tech in the hospital. So share more lights and acknowledge people more कि वो work कैसे करता है। Even मैं भी जानना चाहती हूँ exactly वो work कैसे करता है। हमने ये नया 3D AI बेस्ड टेक्नोलॉजी लिया है। तो जब भी हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, तो आपने सुना ही होगा उसके बारे में। Yes. तो उसमें यूजुअली पहले क्या होता था कि हम एक्सरेज के ऊपर प्लानिंग करते थे। Okay. फिर दूसरे कुछ टेक्नोलॉजीज आई जैसे रोबोट से, जो ऑपरेशन के दरमियान वो प्लानिंग शुरू होता है। ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें ऑपरेशन से पहले पूरा प्लान हो जाता है। Okay. तो ये इसमें ऐसा है कि हम सिर्फ एक सिंपल सिटी स्कैन, सुना होगा आपने, Yes. सिटी स्कैन के लिए पेशेंट को भेजते हैं। Yes. उसका एक स्पेसिफिक वे है जिससे सिटी स्कैन करना है, और वो पूरा हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम अपलोड कर देते हैं वो फाइल्स। Okay. उसके बाद सिर्फ पूरा हमारा पेशेंट का जो एनाटॉमी है, कितना आर्थराइटिस में, जैसे मैंने आगे बोला कि सबका आर्थराइटिस अलग है, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। तो वो आर्थराइटिस के हिसाब से हमें पेशेंट को हम पूछते हैं कि उनको क्या चाहिए। उनको फ्लेक्शन ज़्यादा चाहिए, उनको पाल्टी मार के नीचे बैठना है, या उनको लंबे तक चलना है। तो वो स्पेसिफिक एक्टिविटी के हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। और ये प्लानिंग में ऐसा है कि हम पूरा जो ऑपरेशन में, आपको पता है ना कि हम जो कट्स लेते हैं बोन के, वो सब, तो हम पूरा पहले ही सब प्लान हो जाता है। Okay. तो मुझे 5 mm का कट लेना है, 8 mm का कट लेना है, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। टेक्निकल एस्पेक्ट पूरा हम ऑपरेशन से पहले प्लान कर देते हैं। तो आपने सुना होगा कि व्हेन यू फेल टू प्लान, यू आर बेसिकली प्लानिंग टू फेल। तो हमें फेल नहीं होना है, हमें तो 100% रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए हम पूरा ऑपरेशन से पहले प्लानिंग कर देते हैं इसके हिसाब से। और सीटी स्कैन में जैसे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि पूरा इम्प्लांट आ जाता है, जो हम एक्सरे के ऑपरेशन के बाद एक्सरे दिखाते हैं वो हम पेशेंट को पहले दिखा देते हैं। Okay. तो पेशेंट देख के ये देखते हैं कि पूरा वीडियो में उनका इम्प्लांट सर्जरीज हो गया है। उसके बाद पेशेंट्स आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको रिजल्ट अच्छा आएगा। हम बाकी के पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, प्री और पोस्ट ऑफ वीडियोस दिखाते हैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और वंस पेशेंट इज कॉन्फिडेंट एंड पेशेंट इज पॉजिटिव, तो रिजल्ट तो अच्छा मिलने ही वाला है। एंड जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो एक्सपर्टीज है एंड जो स्किल्स है वो इट इज देयर, सो वी ऑलवेज गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। Can I know one thing? In your orthopedic career, which is that one case that has touched your heart and that you would like to share their case history?
So obviously we don't reveal the patient details, but this was a young boy. When he came to me, he was 15 or 16 years old. और उनको नी के ऊपर जो फीमर बोन बोलते हैं, तो नी के जस्ट ऊपर के पार्ट में उनको कैंसर था, जिसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ऑस्टियोसार्कोमा. इट इज अ टाइप ऑफ बोन कैंसर. ओके. कैंसर वर्ड सुना यानी आपने क्या सुना? वेरी इट्स डेडली, लाइक डेडली. या. एंड दूसरा पेशेंट क्या सोचेगा कि मैं तो अब गया. यस. ठीक है. सो अभी जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, तो हमने पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट किया, जिसमें वो पूरा कैंसर वाला बोन निकाल दिया. हमने नया जॉइंट डाला विच इज कॉल्ड मेगा प्रोस्थेसिस. यानी रूटीन जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो अलग है, इससे मेगा प्रोस्थेसिस, उससे पूरा आजू बाजू का सब ट्यूमर टिश्यू निकाल के सर्जरी किया. आज वो पेशेंट हर साल मुझे मिलने आता है, उसका कैंसर कंप्लीटली क्योर्ड है एंड ही इज़ वेरी थैंकफुल टू मी. वो जो इम्प्लांट्स है वो कितना चलेगा वो उसके ऊपर है, बट ही इज सो थैंकफुल. ही कम्स फ्रॉम राजकोट एवरी ईयर. तो ऐसे जब ट्रीटमेंट हम करते हैं, देन आई फील दैट आई हैव चूजन द राइट फील्ड. आपके एक्सपीरियंस में कौन सी ऐसी इंजरी देखने मिली है जो दिखने में छोटी है लेकिन फ्यूचर में सबसे ज्यादा डैमेज कर सकती है? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मैंने जो बोला कि मैं स्पोर्ट्स इंजरी में अपने कॉमन, आपने सुना होगा कि एक ACL लिगामेंट है घुटन में, तो बहुत कॉमनली इंजर्ड है. इश्यू क्या है कि ACL लिगामेंट के बाद मैं सर्जरी यूजुअली 3-4 हफ्ते के बाद करता हूँ. पूछो क्यों? क्योंकि इनिशियली जो घुटन में सूजन होता है वो कम करने के लिए टाइम चाहिए. अगर तुरंत सर्जरी कर दिया तो पेशेंट को स्टिफ हो जाता है. अभी क्योंकि 3 हफ्ते के बाद मैं सर्जरी कर रहा हूँ, तो 3 हफ्ते में पेशेंट तो चलने लगता है. पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं तो नॉर्मल चल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सर्जरी क्यों कराऊँ? बेसिकली उनको सर्जरी इसलिए चाहिए क्योंकि यंग पेशेंट है, तो उनको चलने में दिक्कत नहीं होने वाला है. जब भी वो डांसिंग करेंगे, जंपिंग करेंगे, अनइवन सरफेस में जाएंगे, दौड़ के बस चढ़ना है, ट्रेन में जाना है, कहीं पे भी जाना है, उस टाइम पे लिगामेंट रोल प्ले करता है. तो जैसे मैंने बताया कि मेजोरिटी पेशेंट ऐसे आते हैं कि 1-2 साल तक उन्होंने खींचा है ACL इंजरी के बाद, और फिर ACL तो सर्जरी करना ही है, मेनिस्कस भी डैमेज कर देते हैं, आर्थराइटिस भी कर देते हैं. तो दिस इज वन इंजरी. मेरे काफ़ी नॉन पेशेंट्स भी अभी भी जिन्होंने अभी तक सर्जरी नहीं करवाया, या तो डरते हैं या तो लगते हैं कि डॉक्टर ऐसे ही सर्जरी बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. उनको घुटन को बचाने के लिए ये करना जरूरी है. Last question, which is very close to me, sir. What message would you leave for our NRI clients? So we are getting lots of NRI patients here because I often get patients call and WhatsApp from different countries, from USA, from UK, that they have this particular issue, and उनका कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में ही 4-6 महीने निकल जाता है. और मेरे पास अगर पेशेंट आते हैं तो सुबह MRI हो गया, शाम को MRI का रिपोर्ट आ गया, नेक्स्ट डे सर्जरी हो गई, महीने में तो उनकी ट्रीटमेंट भी खत्म हो गई, और वहाँ पे 3-4 महीने तक उनका इन्वेस्टिगेशन MRI के लिए ही वेटिंग चलते रहता है. सो इंडिया इज नाउ इमर्जिंग एज अ लीडिंग हब फॉर मेडिकल टूरिज्म, एंड वी एट आशीर्वाद हॉस्पिटल we are serving across all specialties, so you can contact us for any health related issues. Thank you so much. Thank you so much for being on the podcast with me, sir, today. Thank you. Thank you so much, Dr. Neil Shah, for joining us today and sharing such valuable insights on sports injuries, prevention से लेकर recovery तक. आपने बहुत ही practical और easy to follow tips दी है. आपके clinical experience की वजह से हमारे listeners को अब अपने physical fitness और sports performance को लेकर ज्यादा informed decisions लेने में हेल्प मिलेगी. और सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को भी दिल से शुक्रिया आज का एपिसोड देखने और सुनने के लिए. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशंस पसंद आए तो चैनल को फॉलो करें, एपिसोड्स को शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप किन टॉपिक्स पर एक्सपर्ट्स के साथ बात करना चाहेंगे. मैं भी डॉक्टर चित्रा शुक्ला फिर मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट और नए हेल्थ टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी.